دیکھیے آج بھی ایک جید سپریم کورٹ کے جج نے جو بیانیہ دیا ہے کہ اس کے بچوں کی جو ہے انہوں نے ویڈیوز وائرل کی اور ایک آفیشیل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی. یہ شرمناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں. کالا کوٹ وکلا ساتھ کھڑی ہے, عوام ساتھ کھڑی ہے, ہم سیاستدان ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بالکل پاگل ہو گئے ہیں. یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستیں ہیں, ہم سے یہ فارم 47 کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہم انہیں چھیننے دیں گے. جس طرح چکزئی صاحب نے کہا یہ ایوان سوورن تبھی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یہی ریاست ہے, عوام ریاست ہے. آپ لوگ تنخواہ دار ہو, آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس سے ملتی ہے. آپ حکمرانی نہیں کر سکتے 25 کروڑ عوام پر, تو 25 کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مضمر ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعے کے دن ساری قوم نکلے گی اور ہم وکلا جو ہے یہ تحریک کر رہے ہیں. اور ہم نے ہفتے کے دن گجرانوالے میں بھی ایک کنونشن جو ہے کا انعقاد کیا ہے اور سارے پاکستان میں ہم کنونشنز کریں گے کہ عدلیہ کے وقار, عدلیہ کی عزت, عدلیہ کی توقیر, عدلیہ کی تعظیم, اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے, اور یہ بے ضمیر کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی, جنہوں نے بالادستی آئین کی بالادستی کی ہے, ان کو یہ بے ضمیر کہیا ہے. اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں, خدا را آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں, اس کی لگام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیر ہیں. اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو باضمیر ہیں, اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے ضمیر ہیں. شرم آنی چاہیے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعے کے دن بلکہ وکلا پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا, اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے. پرامن طور پر جو ہے نا ہمارا 3 مطالبے ہیں. نمبر 1 جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں, عمران خان, بشرا بی بی, اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پہ اٹیک ہوا ہے, لوگوں کو ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کی رہائی. نمبر 2 مہنگائی جو کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی, پیٹرول کی اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے. اور تیسرا جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے جو کراچی میں ہے, جو بلوچستان میں صورتحال ہے, اور خاص کر جو ہے پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں, پوری ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے. میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹی سی اور اس سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے, نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک فاشسٹ طریقے سے جو چلا رہے ہیں, یہ فاشسٹ حکومت, ان کے خلاف نکلیں گے. میری اپنی قوم سے امید ہے کہ بھرپور طرح سے نکلیں گے. ان کا بغض اور خسرت اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس, ان کو جانا پڑے گا. اس وقت پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے, رول آف لا بالکل نہیں ہے, آئین کی حکمرانی نہیں ہے. ملک بڑے بحرانوں کا شکار ہے. آپ کے سامنے سیاسی بحران, معاشی بحران, امن و امان کا بحران. دنیا میں ملک تنہا ہے, irrelevant ہے پاکستان. ان حالات کے اندر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ رول آف لا کے لیے کام ہونا چاہیے تھا, ان کی حکمرانی کے لیے کام ہونا چاہیے تھا. اور فری اینڈ فیئر الیکشن, دنیا میں جہاں بھی بحران آتے ہیں نئے فریش الیکشن کے ذریعے بحران سے نکلا جاتا ہے.
اور नया मैंडेट लेकर लोग हुकूमत में आते हैं, अवाम की हमायत से फिर बहरानों से निकलते हैं। अब यहाँ पर एक तो पहली बात है, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। ये वो काम किया गया है जो पाकिस्तान की सालमियत पर वार है, ये आइन पर वार है, पाकिस्तान के अवाम के हक पर डाका डाला गया है। नंबर 2, ये किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुश्किलात को हल करना चाहिए, बहरानों को दूर करना चाहिए। और ये जो हुकूमत है और इनको लाने वाले जो हमारे इनके बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये बहरानों को बढ़ा रहे हैं। आप मुझे बतलाएं, वो लीडरशिप जिसके साथ पाकिस्तान के 90% अवाम हैं, हम सारे उसके साथ हैं, उसको कहते हैं जी कि आर्टिकल 6 लगाएंगे हम इनके ऊपर। इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। नंबर 2, कहते हैं पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। किस पार्टी पर? जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं। यानी सुंजियां हो जन गलियां दे विच मिर्जा यार फेरे, ये नहीं चाहते कोई बंदा भी ना हो। क्या अवाम के हक की बात करना गद्दारी है? आइन की हुक्मरानी की बात करना गद्दारी है? रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? महंगाई के खिलाफ बोलना गद्दारी है? अवाम की आवाज उठाना उन मजलूमों की गद्दारी है? और वो लोग जो गला घोंटते हैं, आइन का गला घोंटते हैं, कानून का गला घोंटते हैं, सच्चाई की आवाज का गला घोंटते हैं, गरीबों की आवाज का गला घोंटते हैं, वो बावफा है। दुनिया नहीं मानती है जिस चीज को। ये हारा हुआ लश्कर, मैं पहले कह चुका हूं, ये हार चुके हैं। और अवाम इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द, ये जल्दी होने वाला है कि इनका जनाजा उठेगा इनकी शिकस्त का, और ये दुनिया के लिए निशान इबरत बनेंगे। ये हारा हुआ लश्कर नहीं चल सकता। फिर आखिरी बात, सब कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। हम इनके खिलाफ मैदान में साबित कदम रहेंगे और हम कभी भी ना किसी से डरते हैं, ना खौफजदा है, ना किसी की परवाह है। इन बुज़दिलों से हम नहीं डरते कभी भी। इमरान खान दलेर, बहादुर, शुजा, अल्लाह पर कभी ईमान, उस पर तवक्कुल रखने वाला, पाकिस्तान की उम्मीद है। वो पाकिस्तानियों में उम्मीद के चिराग जलाने वाला है। हम उसके साथ हैं, उसके साथ यानी पाकिस्तान के साथ, वतन के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन जरूर आएगा, ये जुल्म की स्याह रात खत्म होकर रहेगी। कुरान कहते हैं अल्लाह सुबह बे करीब इस्तेफाम इनकारी है, ये यानी यकीनन सुबह आएगी। जितनी भी रात जुल्मत की रात, जुल्म की रात तारीख को, सुबह ने जरूर आना है। सवेरा तुलू होगा, आदल का सवेरा, इंसाफ का सवेरा, कानून की हुक्मरानी का सवेरा, रूल ऑफ लॉ का सवेरा। और उस मर्द, उस जवान मर्द गैरतमंद पाकिस्तान के सियासतदान की रिहाई का, वो असल में रिहा है, बाहर आने का समय, वो आज़ाद है। ये कैदी हैं, ये सारे कैदी हैं, वो आज़ाद है। वो हमारे दिलों में रहता है, पाकिस्तान के 90% अवाम के दिलों में रहता है, दुनिया के करीम नजीब हुर्रियत पसंदों के दिलों में रहता है। इंशाअल्लाह वो आएगा और इस सारी की सारी इनकी तख्त की बसात जो है वो लपेट दी जाएगी और पाकिस्तान में आज़ादी का परचम बुलंद होगा, हुर्रियत का परचम बुलंद होगा। गैरतमंद, शरीफ, शुजा, बहादुर हुक्मरानी करेंगे, आदल होगा इंशाअल्लाह। वो दिन जरूर आएगा। और ये आने वाला जुमा, ये मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, ये किसी मसलक का नहीं है, ये किसी इलाकाइयत का नहीं है, लसानियत का नहीं है, किसी कौमियत का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का है। मेरे पूरे पाकिस्तान के अवाम से, जीबी से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक, सबसे गुजारिश है, जुम्मे को अपने हक के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना है, उनके साथ इज़हार यकजहती जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए निकलना है, उन मजदूरों के लिए निकलना है जिनकी कमर तोड़ दी गई है, गरीबों के लिए निकलना है। सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। और हम सब का वादा, आने वाला जुमा, नमाज जुमा के बाद हम सड़कों पर और मैदान में होंगे इंशाअल्लाह, सब निकलेंगे। पाकिस्तान हमारी अपनी बदकारियों की वजह से अपनी तारीख के बदतरीन अमरजहती बहरान में मुब्तला है। ये पहला फ्रंट है जो बना है, इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और उसकी जगह हमारे ब्रिटिश सब को बिठाया जाए। ये इतिहाद इसलिए बना है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, आइन के तहत इदारों की जो डेफिनेशन है उसमें वो अपने वो करें। ये पार्लियामेंट सही जमहूरी
तरीके से मुंतखब लोगों के बनाया हुआ हो, ताकत का चश्मा हो। हम कल निकल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को जो पैसे के ज़ोर पे ज़र और ज़ोर के तरीके से आई है, इससे निजात के दो रास्ते हैं। या ये कि हम आवाम को सड़कों पे इस अंदाज में ले आएँ कि हर जगह गड़बड़ हो, बर्बादी हो, आग हो, फलाना हो, उसका पाकिस्तान मुतामल नहीं हो सकता। तो हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में जुमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। आप अपने यारों को संभालें, आप गड़बड़ न करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हर पाकिस्तानी, चाहे मर्द है, औरत है, जिस मसलक का भी है, जिस पार्टी का भी है, हत्ता अगर फौज का आदमी है, वो जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना चाहता है, उसके फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना जमहूरी ऐलान शुरू कर दें। इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। कोई मीर तकी मीर कहते हैं इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी। उसमें कैदियों में सबसे पहला इमरान खान, मुझे तो दुख होता है जब हम कहते हैं उनको रिहा करो। इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, जाइनूं की हुकूमत है, वरना शहबाज को ये करना चाहिए था कि खुद जाके फिक्रों में कह देता कि भाई अगर आप इमरान खान को जमानत पे छोड़ना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं। वो आ जाता, यहाँ बात होती। बहरहाल इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं। हम ये नहीं कि हम अपने आप को अपने खुद समझते हैं, भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं। आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। गाइड अस, लीड अस एंड जॉइन अस। गॉड ब्लेस।